Beta, good morning. Yes, good morning, children. Uh, Today we will start. I am going to start chapter 5, which is food and health. Beta, you know very well, we eat only the nutrients. Anyone can say the name of nutrients? You have already taught in previous classes. Protein, fat, vitamins, Very good. Very vitamins, good. and minerals. Yes. Correct, beta. Minerals. Carbohydrate, fat, Protein, proteins, fat, vitamins and minerals. These are five nutrients which provide us energy, help us to grow. Is it clear, beta? So, various substances, listen carefully, various substances which are required by our body are present in food. This is the cause. This is because we eat food due to many nutrients are present in our food. Carbohydrate, fat, protein, and these are the very essential to us. So beta, these substances are called nutrients. Okay beta, nutrients. Why nutrients is required beta? Nutrients are required for proper growth and development of our body. Is it clear beta? Nutrients are required for proper growth and development of our body. You know beta, what are nutrients? Are carbohydrate, fat, protein, vitamins, and nutrients are the main nutrients. You know beta, roughage, you have already taught about roughage, water. These are also very essential to us, but the main nutrients are only carbohydrate, fat, proteins, and also. But you know, have you listened? I am going to uh, share screen, beta. Uh, just beta. Yes, this is the food pyramids. This is called food pyramids. You know, beta. Have you seen? This is called food pyramids. What is the meaning of food pyramids? This is how much this is how much you eat different nutrients. First of all, bread and cereals. What is it? Eat the most. Eat the most. Okay, beta. Yes. First is bread and cereals. First of all, eat the most. मतलब आपको सबसे ज्यादा खाना चाहिए. सेकेंड जो स्टेज पर है, सेकेंड स्टेज जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सेकेंड स्टेप जो है, लुक, ऑल ऑफ यू आर लुकिंग पिरामिड्स. वेरी गुड. तो it has to eat more fruits and vegetables, or you will eat more. Okay beta. Next step is next step is milk and dairy products, bean products and meat. बेटा, it is eat moderately मतलब sometimes you will eat these foods. Every time नहीं. Sometimes you will eat milk and dairy products. Okay beta. Sometimes you will eat milk, dairy products, bean products and meat. Okay beta. Next is yes, very good beta. And the top of the pyramid, that is salt, sugar and fat.
salt, sugar and fat, eat less. Beta, eat less. You know very well. So it shows pyramid. Listen carefully, beta. Yes, ma'am. हाँ, listen carefully. Listen carefully. It shows what? Food pyramids. Food pyramid shows the proportion of foodstuff and nutrients which we should eat to maintain good health. Is it clear, beta? This pyramid shows. टीचर दिया गया है. Yes, ये step by step जो है बेटा, it shows what should be eat less and what should be eat more. Eat more. Yes, very good. It shows the proportion of food stuff and nutrients which we required, which we should eat to maintain good health. The healthy eating pyramid shows the balanced diet. Beta, this is also known as the balanced diet. Clear hai beta? It is also known as the balanced diet. But you will remember always the food pyramids. That's why you can maintain good health. Okay, beta. What is health? Now, I have a question. We have a questions. What is health? What is health? Beta, a state of complete physical and mental well-being. Well-being is called health. हम लोग फिजिकली एंड मेंटली अगर हेल्दी होते हैं तो दैट इज कॉल्ड द हेल्थ. ओके बेटा, क्लियर है? इज इट क्लियर चिल्ड्रन? Students, Yes, please ma'am. reply, beta. Yes. ma'am. What is health? Yes, ma'am. What is health? Beta, a state of complete physical and mental well-being is called health. Is it clear, beta? For maintaining. State of being healthy. Yes. Yes. So, beta, for maintaining a good health, for our body needs the following. क्या क्या उसको जरूरत होती है बेटा? A balanced diet, Nutrient. regular exercise, proper rest, good personal hygiene. हाइजीन होना, अपने आप को क्लीनलीनेस एंड हाइजीनिक होना, दैट इज इम्पॉर्टेंट. अदरवाइज वी विल fall ill. It's not a cause of good health. So hygienic होना, that is very essential to us. Clean and hygienic surroundings. सिर्फ ये नहीं है कि you will clean your house and yourself. No, your surroundings should be also clean. So beta, this is the factors of good health. What is the proper beta? A balanced diet, regular exercise, clear hai beta? Proper rest, good personal hygiene, and clean and hygienic surrounding. आपको surroundings भी, we should keep our surroundings clean. Okay beta? अब then what age disease? है ना बेटा? What age disease? So then I will show you health हो गया. Disease. A disease, age, any defects and or abnormality found in the body, है ना? Any defects of abnormality in the body is called a disease. Is it very clear, beta? Yes, Samriddhi, do you want to say something? Okay. Yes, Samriddhi, I am going to unmute you. Samriddhi, आपके घर से आवाज आ रही है बेटा? मैम आर्या टीचर की कैसे आवाज आ रही है? मैम आर्या टीचर की आवाज आ रही है. अच्छा राठौर, आर्या टीचर की कैसे आवाज आ रही है? I am going to mute you, beta.
मैं म्यूट कर दूंगी, बस आप लोग ऐसा करते रहिए। आवाज आप, क्योंकि क्लास के बीच में आई डो नॉट वांट टू एनी डिस्टर्बेंस। ओके बेटा। समृद्धि, समृद्धि आपने हैंड रेज नहीं किया है, वेरी बैड बेटा। आपको जब भी क्वेश्चन पूछना हो, आप फर्स्ट ऑफ ऑल रेज योर हैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल रेज योर हैंड बेटा, अदरवाइज आई हैव प्रॉब्लम टू सर्च यू बेटा। समीक्षा, हाँ समृद्धि, अनम्यूट योरसेल्फ। समृद्धि, समृद्धि, यस बेटा, मैम, यस, व्हाट डू यू वांट टू से समृद्धि? मैम जो मैम आप जो पढ़ा रही थी ना, उस समय जब मैं कनेक्ट हुई थी मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रही थी। क्या आप एक कोई बार बात फिर नहीं, से डोंट वरी, उस डोंट जगह से वरी, बता आई विल सकती हैं? सेंड यू योर वीडियो बेटा, यू विल सी। ओके, आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, सो डोंट वरी, डोंट वरी, ओके आई मैम, एम थैंक यू। डिस्कनेक्टेड और ना, इट इज द प्ले ऑफ नेट बेटा। नेटवर्क इशू हो सकते हैं ना, इसके लिए आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। मैं जो भी पढ़ा रही हूँ उसकी वीडियो आपको दूंगी। क्लियर है बेटा? सो कीप क्वाइट। हाँ, आपके घर से ओके आवाज नहीं आ मैम। रही बेटा, आप ऐसो अनम्यूट हो। सो बेटा, हेल्थ, सॉरी, हेल्थ मैंने आपको बता दिया। हाँ, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ हेल्थ? इफ वी डू नॉट फुलफिल दीज डिफरेंट नीड्स ऑफ आवर बॉडी, वी मे फॉल ill and get diseases. ओके बेटा, ओके 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 स्टूडेंट्स। तो व्हाट इज डिजीज? व्हाट इज डिजीज? यू नो बेटा, any defects of abnormality, any defects or abnormality of the in the body is called a disease. A disease may be caused due to malfunctioning of some body parts or due to lack of particular vitamins, minerals, है ना, in the body. These are two main types of diseases. Beta, diseases are divided into two types. So beta, first is non-communicable disease and second is communicable disease. First is non-communicable disease. So what is non-communicable disease? First of all, we now to non-communicable disease. Okay beta. So non-communicable disease, a disease which not spread from one person to another, is called non-communicable disease. This disease does not spread from one person to another. Clear है बेटा? Non-communicable disease, it does not communicate to one person to another. So beta, carefully listen, what is the terms? Non-communicable disease, a disease which does not spread from one person to another, is called non-communicable disease. Some of the non-communicable disease may be present at birth. Most of the non-communicable diseases are caused by deficiency of a particular nutrient. Okay beta, so the different type, let us now learn more about deficiency disease. First है बेटा, deficiency diseases क्या है? प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट deficiency disease. प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट deficiency disease. You know very well बेटा, you know very well, इसको हम बोलते हैं, such diseases are also called PEM, protein energy malnutrition. प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसको हम पेम भी बोलते हैं. दीज डिजीजेज अफेक्ट चिल्ड्रेन बिटवीन 6 months to 3 years of age. ओके बेटा, फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ प्रोटीन डिफिशियंसी, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी डिजीज. So your chart page number, open the page number 51. So protein and carbohydrate है ना बेटा, क्या क्या है?
improper growth of the body, loose skin and sunken eyes, thin and light hair. Okay बेटा, person is inactive and gets tired easily. देख रहे हैं बेटा, आपका ये सब जो सिम्टम्स हैं जो कि है सो कहलाता है, ये जनरली है सो बच्चों में ही होता है, 6 मंथ टू 3 ईयर्स है सो उन लोगों में होता है। कार्बोहाइड्रेट है ना बेटा, तो कार्बो ये है सो आता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी या है सो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इसको बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये केवल चिल्ड्रन में होता है 6 मंथ टू 3 ईयर्स। ओके बेटा, आपका इसके आपने देखा कि कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से ये है सो इसमें है सो ये किस मंथ से 6 मंथ टू 3 ईयर्स होता है। इसमें क्या होता है बेटा, अगर बच्चे को हम प्रॉपर ये बैलेंस डाइट ना दे तो ये सब है सो डिजीज उसमें आते हैं। नेक्स्ट है बेटा ये है, इसके बाद भी जो है वो मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज। क्या है बेटा? मिनरल्स डेफिशिएंसी डिजीज है ना। मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, iodine and sodium are present in our body in a small amount. क्लियर है बेटा? हाँ, ये है सो हमारा कम अमाउंट में मिलता है हमको। सो बेटा क्लियर है? हाँ क्लियर है। तो ये जो है मिनरल डेफिशिएंसी, मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, iodine and sodium are present in our body in a small amount. Deficiency of different minerals in our body leads to improper functioning of different parts of our body. Clear है बेटा? यहाँ पर चार्ट को देखो बेटा, study the following tables and find out the diseases and their symptoms created by deficiency of different मिनरल्स। अब कौन कौन से मिनरल्स है बेटा? आयरन। फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस क्योंकि इसी से हीमोग्लोबिन बनता है। एनीमिया, आप लोग क्लास 4 में भी पूरे चार्ट को आपने पढ़े हो, विटामिन्स की मिनरल्स की चार्ट आपने पढ़े हो। यहाँ पर भी हमने दिखाया कि विटामिन्स एंड मिनरल्स के चार्ट है बेटा। तो आयरन से क्या होता है? एनीमिया होता है, यानी कि लॉस हीमोग्लोबिन कंटेंट इन आवर ब्लड। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या होंगे? ए पर्सन लुक्स वीक एंड पेल, गेट्स टायर्ड वेरी इजीली। जिसमें भी एनीमिक होते हैं बेटा, उनके जो है वो है सो जल्दी टायर्ड हो जाता है। इज प्रोन टू डिफरेंट इन्फेक्शन, और जब वो कमज़ोर होंगे, टायर्ड होंगे ये, तो उनके बहुत सारे इन्फेक्शन वो है सो वो इन्फेक्टेड होते रहेंगे। सेकेंड है बेटा कैल्शियम एंड फास्फोरस। आपको पता है बेटा, इससे बोन और ये है सो हमारे मजबूत होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, डिफिशियंसी डिजीजेज में क्या हो जाता है यहाँ पर? ऐसा तो सिम्टम्स क्या है? वीक टीथ, लूज देयर साइन एंड वाइटनेस, वीक सॉफ्ट एंड फ्रेगाइल बोन्स, मतलब तुरंत वो टूट जाता है ना बेटा। थर्ड है आयोडीन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। ग्वाइटर, enlargement of glands in neck, यहाँ पर है सो ये हमारा ग्लैंड जो है ग्वाइटर वो है सो enlarge हो जाता है। ये पर्सन swelling in the neck region and retarded growth, mental disorder, mental उसमें disorder भी आ जाते हैं। आपको बेटा ये पता है, डू यू नो हीमोग्लोबिन इज ए पिगमेंट फाउंड इन ब्लड विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड प्रोवाइड्स रेड कलर टू ब्लड। क्लियर है बेटा? अब आते हैं मिनरल्स, विटामिन्स डिफिशियंसी। वहां भी तुम लोग इसके पूरे चार्ट को पढ़े हो बेटा कि टाइप्स ऑफ विटामिन्स, देयर फंक्शन एंड सोर्सेज, हैव यू रेड अबाउट द। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि विटामिन्स ए बी सी डी से क्या क्या है सो
सिम्टम्स एंड डिफिशियंसी डिजीजेस के नाम क्या है। तो विटामिन ए पहले हम देखते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। इससे क्या होता है बेटा? नाइट ब्लाइंडनेस। हाँ, तो यहाँ पर है, उसमें सिम्टम्स क्या आएगा? अनेबल टू सी इन डिम लाइट, डलनेस इन आईज, ड्राई एंड स्केली स्किन। ओके बेटा, विटामिन बी की कमी से क्या क्या होता है? बेरी बेरी, है ना बेटा? बेरी बेरी एक डिजीज है, इसमें क्या होता है? एक्सट्रीम वीकनेस एंड पैरालिसिस ऑफ बॉडी पार्ट्स। इट इज वेरी, ये इसके कारण है कि हम लोग विटामिन बी को हमेशा लेते रहना चाहिए। विटामिन सी, ये स्कर्वी, जो हमारे गम्स को, ये है सो गम्स में ब्लीडिंग और ये सब होता है, ये गम्स डिजीज होते हैं, स्कर्वी जिसको बोलते हैं। तो स्वेलन एंड ब्लीडिंग गम्स, लूज टीथ एंड पेन्स इन जॉइंट्स, जॉइंट्स में है सो। हाँ समृद्धि, व्हाट टाइप ऑफ, बोलो बेटा, बोलो, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू हैव बेटा? समृद्धि बोलो, एनी प्रॉब्लम्स डू यू हैव बेटा? आप अनम्यूट हो चुके हो। ओके समृद्धि, समृद्धि अनम्यूट योरसेल्फ। समृद्धि, हाँ मैम हाँ बोलिए, बोलिए बेटा, आई एम लिसनिंग, बोलो। आप तो अनम्यूट हो। पहले मुझे पढ़ा लेने दो, फिर मैं आप लोग को टाइम दूंगी। विटामिन सी स्कर्वी, स्वेलन एंड ब्लीडिंग गम्स। सेकंड है बेटा लूज टीथ, पेन इन जॉइंट्स। बेटा आपको पता है कि इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? जितनी भी सोर सोर जो मतलब खट्टी चीज़ें होती है, लेमन है, ऑरेंज है, आंवला है, ये सब में मिलता है। आप लोग क्लास 4 में इस पर चार्ट को फिर से देख लेंगे। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स, सॉफ्ट एंड वीक बोन, बोथ सेपरेट लेग्स। So beta, scurvy and rickets have you seen? Do you know? Page number 53. In 1910, an American scientist found that the outer layer of rice kernel contain a substance called thiamine. This is needed by our body to prevent diseases called beriberi. These substances, also called vitamin B, was the first vitamin to be discovered. अब तो बेटा चावल जो था पहले के ज़माने में, वो जब तुम धान को लेकर के अगर छीलोगे तो उसमें देखोगे चावल जो होता है वो वाइट नहीं होता है, वो रेड कलर का होता है। वो रेड कलर जो क्या है बेटा? थायमिन है, जो कि विटामिन बी का बहुत बड़ा सोर्स है। मगर आजकल जो हमारे पास जो चावल आते हैं बेटा, वो है सो वो रेड वाला पोर्शन है सो हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है और हम उसको नहीं ले पाते। लेकिन ठीक है, डिफरेंट वे में हम और भी विटामिन बी को लेते हैं। अब क्या है बेटा कि प्रिवेंशन ऑफ डेफिशिएंसी डिजीजेज, प्रिवेंशन ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज, हम कैसे इसको रोक सकते हैं, है ना बेटा? तो ये कैसे हम रोक सकते हैं? डेफिशिएंसी डिजीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ऑब्टेनिंग द फॉलोइंग मेजर्स। क्या क्या करना चाहिए बेटा? आपको पता है कि ये हमारे फूड में अगर कोई भी न्यूट्रिशन की कमी होगी देन यू विल गेट इल। सो बेटा वन शुड टेक ए बैलेंस डाइट containing all types of nutrients। हम लोग को एक है सो बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिसमें ऑल तरह के न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों। सेकेंड है बेटा वन मस्ट फॉलो गुड फूड प्रैक्टिस एंड हैबिट्स। एक आपको हंसो, एक हंसो अच्छा खाना, हाइजीनिक खाना, सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल्स को एक बैलेंस वे में खाना, ये है सो हम लोग को गुड फूड प्रैक्टिस एंड हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए। Children must be given adequate amount of milk, milk products and
additional food items like juices, soft boiled rice and porridge. मतलब छोटे बच्चों को भी हम बैलेंस डाइट देना बहुत ज़रूरी है कि उनको हम है सो मिल्क प्रोडक्ट्स दें, बिकॉज यू नो बेटा मिल्क इज ए कंप्लीट फूड. मिल्क इज ए कंप्लीट फूड. सो बेटा यू जब आफ्टर 6 मंथ्स के बच्चे हो जाते हैं, शुरू तो वो केवल मिल्क ही ज़्यादातर लेते हैं, लेकिन उसके बाद मिल्क प्रोडक्ट्स, एडिशनल फूड आइटम्स लाइक जूस, सॉफ्ट बॉइल्ड राइस, पॉरेज इटिशी उसको देते रहना चाहिए, है ना बेटा. और हमारा कम्युनिकेबल डिजीज है नेक्स्ट जो हमारा है वो कम्युनिकेबल, जो द डिजीजेज which generally get transmitted from one person to another are called communicable disease. ये किसी की कमी से नहीं होता. हमारा एक हेल्दी शरीर हो तब भी अगर मॉस्किटो बाइट कर ले एयर के थ्रू, अभी जो हम लोग कोरोना से है सो बेटा कोरोना को फेस कर रहे हैं, तो वो क्या है बेटा, एक वायरस है जो हमें इफेक्ट कर रहा है. तो ये भी कोरोना क्या है, कोरोना क्या है बेटा, एक है सो कम्युनिकेबल डिजीजेज है ना बेटा. तो ये कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो है सो हम देखते हैं उसको, ठीक है बेटा. कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो कौन कौन सा है, उसको द डिजीजेज विच जनरली get transmitted from one person to another are called communicable diseases. These diseases are transmitted either through germs like bacteria, virus, fungi and non-living or living agents. The germs enter the body of a person through nose or mouth and food and water taken. हमारा नोज के थ्रू इंटर करता है, फूड के थ्रू माउथ के थ्रू इंटर करता है, या जब हम फूड और वाटर को इंटेक करते हैं तो वो हमें इफेक्ट करता है. वे बाय विच कम्युनिकेबल डिजीजेज स्प्रेड. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा बाय इंसेक्ट्स. You know very well mosquito is very harmful as so insects. So diseases like malaria and dengue are spread by the bite of mosquitoes. Plague is spread by fleas. ये सब तुम लोग क्लास 4 में पढ़ चुके हो कि फ्लीज के थ्रू हमें प्लेग होता है. मलेरिया किसके थ्रू होता है, एनोफिलीज के थ्रू. डेंगू एडिस मॉस्किटो के थ्रू होता है. क्लियर है बेटा. नेक्स्ट जो हमारा आता है बाय एयर, वाटर एंड सॉइल. एयर, वाटर एंड सॉइल आर नॉन लिविंग एजेंट्स which can transmit diseases. The germs of the disease enter air, water or soil through coughing, sneezing, etc. इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कफिंग या स्नीजिंग करो, you cover your mouth, you cover your nose. By an infected person, they can then enter the body of another person. Germs of common cold, measles, chickenpox spread through air, while germs of diseases like cholera, typhoid, jaundice spread through water. हम लोग जब भी contaminated water को intake करते हैं तो then typhoid, jaundice spread, ये सब है सो water के थ्रू होता है. अब इसके हम लोग रोक कैसे सकते हैं भाई. प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज कैसे कर सकते हैं. कम्युनिकेबल डिजीजेज can be prevented by observing the following precautions. Okay बेटा, कौन कौन से प्रिकॉशन. और द आर्टिकल्स एंड क्लोथ्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी डिसइंफेक्टेड. अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको हम लोग को उसके जो क्लोथ्स है एंड ऑल आर्टिकल्स, जो भी चीज़ों को यूज़ कर रहा है उसको हमें डिसइंफेक्ट कर देना चाहिए. One must always cover the nose or mouth while sneezing or coughing. The third है the surroundings must be kept clean and hygienic. हमेशा इसको क्लीन और हाइजीनिक अगर रखेंगे तो आप also infected कम होंगे. Water must be not allowed to stagnate around homes. Stagnant water is the breeding place of mosquito. We should never allow to stagnant water around our homes, around our environment, around our surroundings.
फिफ्थ है बेटा, इट इज इम्पॉर्टेंट टू कीप ऑन चेंजिंग द वाटर इन रूम कूलर्स. इट इज वेरी मतलब फ्लावर पॉट्स एंड अदर कंटेनिंग आफ्टर कंटेनर्स आफ्टर एवरी 3-4 years. हमेशा उसको उनको चेंज करते रहना चाहिए. इफ नॉट चेंज, सच वाटर कैन बिकम द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ डेंगू मॉस्किटो. ओके बेटा, क्योंकि ना डेंगू मॉस्किटो जो होता है ना वो साफ पानी में वो हासो करता है. जैसे मॉस्किटो मलेरिया का जो ना वो स्टैग्नेंट वाटर में वो ब्रीडिंग करता है, जबकि डेंगू एडिस मॉस्किटो जो है वो साफ पानी में हासो जो 2-3 दिन 4 दिन का हो जाता है उसमें वो हासो ब्रीडिंग करता है. तो हमें उसको चेंज करते रहना चाहिए. या आपको पता है 4 में पढ़े हैं उसमें हम केरोसिन ऑयल को डाल देने से क्या होता है कि वो हासो उस मॉस्किटोज को मार देता है. Vaccination must be done to prevent many diseases like measles, polio and chickenpox. अभी तो हम लोग वैक्सीन सब लोग ले रहे हैं. अभी बच्चे तो तुम लोग तो नहीं ले रहे हो, लेकिन हम सब ले रहे हैं अभी कोरोना का, है ना बेटा. तो हमें ये वैक्सीनेशन भी हमें बहुत हेल्प करता है कि हम हासो डिजीज फ्री रहें. ओके बेटा, ओके.